चिंतामणी मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंतामणी मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। अणियारी तारी आखड़ी जाने कमलनी पाखड़ी, मुख दीठे दुख जाए दूर, चिंतामणी मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंतामणी मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। कोઈને नमे, मारा मनमा तुझ रमे। कोઈને नमे, मारा मनमा तुझ रमे। सदा जुहारू उगते सूर, चिंतामणी मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंतामणी मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। शंखेश्वर ना साचा देव, अशुभ कर्मने पाछा ठेल। शंखेश्वर ना साचा देव, अशुभ कर्मने पाछा ठेल। पूछे मारे हाजिरा हजूर, चिंतामणी मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंतामणी मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। सदाय सरे, आ स्तोत्र जे मन मधरे, तेना काज सदाय सरे। आदि व्याधि दुख जाए दूर, चिंतामणी मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंतामणी मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। मुझने लागी तुझ शू प्रीत, तुझो कोई न आवे जीत। मुझने लागी तुझ शू प्रीत, तुझो कोई न आवे जीत। कर मुझ तेज प्रताप प्रचूर, चिंतामणी मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंतामणी मारी चिंता
मणि अरिहंत देव, भव भव मागू तुझ पद सेव, चिंतामणि अरिहंत देव, समय सुंदर कहे गुण भरपूर, चिंतामणि मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर, चिंतामणि मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर. चिंतामणि मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर, चिंतामणि मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर.
कि मारा हये उमंगना माशे तुझो कि मारा हये उमंगना माशे तुझो ऋषभनु पारनु थाशे तुझो ऋषभनु पारनु थाशे आज अक्षय धारा वही जाशे तुझो आज अक्षय धारा वही जाशे तुझो ऋषभनु पारनु थाशे तुझो ऋषभनु पारनु थाशे आदिम राजा ऋषभजी तो छोड़ी मोहन माया संयम साधे पामे नहीं तोय अन्न काया आदिम राजा ऋषभजी तो छोड़ी मोहन माया संयम साधे पामे नहीं तोय अन्न काया खूब सुंदर मजाનું આયોજન અને આ આયોજનની ભીતરમાં આ આયોજનની વચ્ચે સુંદર મજાની ગિરિભક્તિ સુંદર મજાના ગિરિરાજ પૂજન વયાવચ અને સાથે સાથે માતૃ પિતૃ વંદનાનો આ એક અદ્ભુત કાર્યક્રમ આપણે શુભ શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ સંખ્યા થોડી ઓછી છે કારણ કે બધા પણ થાકેલા છે समझाएली बात है और एक विनंती है आ कार्यक्रम ने जो आपने सुंदर न्याय आपको हशे तो आप जेटला निकट हशो एटलो વધુ न्याय આપી શકશું આપણે વ્યવસ્થા એવી રાખી છે કે ખુરશી પાછળ રહે અને બેસવાવાળા આગળ બેસે પણ કદાચ સંખ્યાના કારણે આપણે પોસિબિલિટી બની નહીં શકે તો આપણે કોઈ ચિંતા નથી આપ જે પણ ખુરશી પર બિરાજમાન છે એ બધાને વિનંતી છે आप जे पाछळ पर विराजमान छे खुर्शी पण आगळ छे जेमनी अनुकूलता छे बधा ज खुर्शी लईने आगळ पधारो जेथी આપણે જેટલા પણ છીએ એટલાની અંદર પણ આપણે એક સુંદર મજાના કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરી શકીએ ખુરશી તમારી પાસે છે પ્રભુજી આવો જેટલા બેઠા છે બસ બે હાથની તાળીના સથવારે પરમાત્મા ભક્તિમાં જોડાઈ થોડી વારની અંદર મિલનભાઈ સાથે આથી ભાવયાત્રામાં જોડાશું પણ થોડી વાર માટે થોડા હાથ ખોલી પરમાનંદની ભક્તિમાં દરેક પુરુષાળી જોડાય ઓ ચાંબરથી આને
આજની યાત્રામાં જેવો ઉત્સાહ ઉમંગ શૌર્ય અને સત્વ ફોરવ્યું ને એવા સત્વ અને શૌર્ય સાથે બોલવાનું છે. બોલ શ્રી આદિનાથ ભગવાન કી બોલ શ્રી શત્રુંજય ગિરિરાજ કી બોલ શ્રી સિદ્ધાચલ ગિરિરાજ કી. શ્રી આદિનાથ ભક્તિ પરિવાર 14 વર્ષોથી ફાગણ ફેરીની આ સુંદર મજાની યાત્રા ઘણા બધા ભાવિકોને લઈને આવતો રહ્યો છે અને આજે આ 14મું વર્ષ 14મી યાત્રા કેટલી વિરાટ અને વિશાળ સંખ્યામાં આ બધા અહીંયા ઉપસ્થિત છો. સુંદર રીતે પરમાત્માની ભક્તિ કરીને ગિરિરાજની 6 ગામની યાત્રા કરીને આપ અહીંયા બધા પધાર્યા છો. મારી વિનંતી છે જે પુણ્યશાળી નીચે બેસી શકતા હોય એ નીચે બેસવાનો આગ્રહ રાખજો, કારણ કે નીચે બેસવાથી જે પરમાત્માની ભક્તિની અંદર આપણે જોડાઈ શકીશું, કંઈક અલગ જ અનુષ્ઠાન થશે. નીચે બેસી શકતા હોય નીચે પધારજો. ઉપર ચાલે જેવો પોતાના
પરિવાર સાથે આવ્યા હોય, મમ્મી પપ્પા સાથે આવ્યા હોય, બાળકો સાથે આવ્યા હોય, સ્વજનો સાથે આવ્યા હોય, એ સાથે બેસવાનો આગ્રહ રાખજો. કારણ કે આજનો કાર્યક્રમ માતૃપિતૃ વંદનાનો કાર્યક્રમ છે, જે પાછળથી આપણે થોડો લેવો છે. ખાસ એટલા માટે બધા સાથે બેસવાનો આગ્રહ રાખજો. કોઈ અલગ અલગ બેઠા હોય તો સાથે બેસજો. ગિરિવર પડતું હોય તો હું તમને પૂછું, અત્યાર સુધીમાં અનંત અનંત આત્માઓનો મોક્ષ આ સિદ્ધાચલ ગિરિરાજથી થયો. પ્રાય અનંત નામ છે, પણ તમારે ને મારે આ સિદ્ધાચલ ગિરિરાજના નામના આલંબને તરવું હોય, ખાલી નામના, યાત્રા કરવાની તો વાત બહુ દૂરની છે. ખાલી સિદ્ધાચલ ગિરિરાજના નામના આલંબને તમારે ને મારે તરવું હોય તો કેટલા નામ જોઈએ? કેટલા નામ કાફી છે? हिंदीમાં લેજો. હાજી, हिंदीમાં બોલો. જી, ઓહો, કે हिंदीમાં બોલજો. એટલે हिंदी વાળા પણ છે ઘણા બધા. अगर आपको और मुझे सिद्धाचल गिरिराज के नाम के आलंबन से तरना हो तो कितने नाम चाहिए? हाँ, एक नाम, खाली एक नाम काफी है. बाकी कई सारे नाम की आवश्यकता ही नहीं है. खाली एक नाम भी हो ना तो सिद्धाचल गिरिराज के नाम के आलंबन से हम तर सकते हैं. भाव सागर पार करना हो, समुद्र पार करना हो, सरिता पार करनी हो या सरोवर पार करना हो, नैया खाली एक चाहिए. एक नैया से पार हो सकते हैं. लेकिन हम है ना व्यापारी हैं, हम व्यापारी, हम बनिए हैं. हमको कोई भी एक चीज से नहीं जमता है. हाँ, गाड़ी भी 2-3 चाहिए, हाँ, फ्लैट भी 2-3 चाहिए, बंगले हो तो भी 2-3 चाहिए, ऑफिस भी 2-3 चाहिए. एक से अपने को जमता नहीं है. दिल मांगे मोर. और इसीलिए सिद्धाचल गिरिराज के प्रसिद्ध 3 नाम हैं. सिद्धाचल गिरी, जरा बोलो तो खरा. सिद्धाचल गिरी नमो नमः, विमलाचल गिरी नमो नमः, शत्रुंजय गिरी नमो नमः. वंदन हो सिद्ध शिला पर जाने के लिए सिद्धाचल गिरी. सिद्ध शिला पर जाने के लिए सिद्धाचल गिरी. सिद्ध शिला पर ऐसे ही नहीं जा सकते. सिद्ध शिला पर जाने के लिए पहले आत्मा को विमल बनाना पड़ता है, उसके लिए विमलाचल गिरी. और आत्मा को विमल बनाने से पहले कर्म शत्रुओं को जीतना पड़ता है, उसके लिए शत्रुंजय गिरी. 3 नाम की एक सुंदर धुन है, आज हम यहाँ से लेने वाले हैं. हम 6 गांव की यात्रा करके आए ना, तो 6 गांव की यात्रा में हमारे शायद शब्दों से नहीं निकला होगा, लेकिन मन में तो यही धुन चलती थी. सिद्धाचल गिरी नमो नमः, विमलाचल गिरी नमो नमः, शत्रुंजय गिरी नमो नमः. वंदन हो गिरिराज ने. हमारे पालीताना के संगीतकार है भरत भाई बारोट. आज उनके साथ ही हम ये धुन लेंगे, वो भी लेंगे और हम भी साथ में उनको जिलाएंगे. भरत भाई. नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः. सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः. वंदन हो गिरिराज, बोलो सिद्धाचल हो विमलाचल गिरि, शत्रुंजय गिरि, वंदन हो गिरिराज जी. सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः. वंदन हो गिरिराज जी. सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि शत्रुंजय गिरि नमो नमः. वंदन हो गिरिराज जी. मंत्रों का एक जबरदस्त विश्व है. विश्व के अंदर अलग अलग प्रकार के कई सारे मंत्र हैं.
कोई प्रभु मंत्र है, कोई प्रभाव मंत्र है, कोई व्यक्ति मंत्र है, कोई शक्ति मंत्र है, कोई देव मंत्र है, कोई गुण मंत्र है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग मंत्र। पूरे विश्व के अंदर जबरदस्त मंत्रों का विश्व है, लेकिन मंत्रादि राज शब्द आए, क्या याद आएगा? नवकार मंत्र। ऐसे ही जिन शासन के अंदर पर्व परंपरा भी अजोड़ है। ज्ञान की आराधना करनी हो तो कौन सा पर्व? ज्ञान पंचमी। नवपत जी की आराधना करनी हो तो कौन सा पर्व? नवपत जी की आराधना करनी हो तो शाश्वती होली, ठीक है। पाश्चात परमात्मा के कल्याण की उजवनी करनी हो तो कौन सा पर्व? पोष दशमी। एक साथ 150 कल्याण की उजवनी करनी हो तो कौन सा पर्व? मौन एकादशी। लेकिन पर्वादि राज शब्द आए, क्या याद आएगा? सिर्फ और सिर्फ पर्युषण पर्व। ऐसे ही जिन शासन के अंदर, जैन जगत के अंदर तीर्थ अनेक है, महातीर्थ भी अनेक है। तीर्थ अनेक है, महातीर्थ भी अनेक है। शंखेश्वर जी, जीरावला जी, अजारा जी, स्तंभन जी, अंतरिक्ष जी, ये सब तीर्थ है। जहां परमात्मा कई सालों से विराजमान है, तीर्थ है। जहां परमात्मा के कल्याणक हुए, पावापुरी जी, चंपापुरी जी, अष्टापद जी, समेश शिखर जी, गिरनार जी, ये सब महातीर्थ है। तीर्थ अनेक है, महातीर्थ भी अनेक है, लेकिन तीर्थादि राज शब्द आए, क्या याद आएगा? हाजी, एकमात्र शत्रुंजय गिरिराज याद आएगा। तीर्थादिराज श्री शत्रुंजय। क्यों? क्योंकि देवों के देव को देवराज कहते हैं, राजाओं के राजा को राजाधिराज कहते हैं, वैसे ही तीर्थों के अधिराज को तीर्थादिराज कहते हैं। और ये तीर्थादिराज, एक तीर्थादिराज का एक परम पवित्र हुलामणा नाम हो, बहुत जबरदस्त नाम है। आप अपने शहर में, अपने परा में, गोरीवली, कांदीवली, मलाड, कहीं से भी आप आए हो, आप जिनालय में गए, पूजा के वस्त्रों में हो, सामने वाला भी पूजा के वस्त्रों में है, आपका परिचय भी है, आप उनको जानते भी हो, वो नीचे उतरा, आप ऊपर चढ़े, आपके मुख से क्या निकलेगा? जय जय जिनेंद्र या प्रणाम। लेकिन आप शत्रुंजय गिरिराज आए, आप श्वेत वस्त्रों में हो, हाथ में लकड़ी है, ऊपर चढ़ने की तैयारी है, यात्री का फुल वेश धारण करके आप आए हो, सामने से यात्री आपको मिल रहा है, आपको मालूम नहीं है कहाँ का है, कोयम्बतूर से है या कलकत्ता से है, चेन्नई से है या बेंगलोर से है, शायद कहीं और से भी आया है, आपको मालूम नहीं है कहाँ से है, लेकिन आंख मिलती है, मालूम पड़ता है ये मेरे दादा का यात्री है, मैं भी मेरे दादा का यात्री हूं। मुख में से शब्द क्या निकलेंगे? जय आदिनाथ, जय गिरिराज। कैसे ऐसे कई सारे पुण्यात्मा है, फोन पर हेलो नहीं बोलते, फोन उठाते हैं तो क्या बोलते हैं? जय गिरिराज, जय आदिनाथ। आज एक गुंजारव करना है जय गिरिराज का नाम।
पर। जय आदिनाथ। ओ जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज। क्या बात है, बहुत सरस। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। पूरे विश्व में एक भी ऐसा तीर्थ नहीं है जिसे तीर्थाधिराज की उपमा मिली हो। तीर्थ अनेक, महातीर्थ भी अनेक, पर तीर्थाधिराज सिर्फ एक, शत्रुंजय गिरिराज। क्यों? वाई? क्या कारण है कि शत्रुंजय गिरिराज ही तीर्थाधिराज है? शत्रुंजय गिरिराज ही गिरियों का राजा है। गिरिराज, पर्वताधिराज, शब्दाधिराज, तीर्थाधिराज। ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ और सिर्फ शत्रुंजय गिरिराज को ही तीर्थाधिराज की उपमा दी गई है, बाकी अन्य कोई तीर्थ को ऐसी अद्भुत उपमा नहीं दी गई है? कारण क्या है? शाश्वत तीर्थ है। गिरनार भी शाश्वत, शिखर जी भी शाश्वत। पहले देवलोक से उत्सव करते हैं और एक सिद्ध वड नीचे जहां पे पूजा सेवा की व्यवस्था की गई थी, सिद्धशिला और सिद्धवड, पूरे विश्व में सबसे अधिक आत्माओं का मोक्ष शत्रुंजय गिरिराज पे हुआ है। लेकिन शत्रुंजय गिरिराज में सबसे अधिक आत्माओं का मोक्ष हुआ हो तो ये दो भूमि है, एक सिद्धशिला और दूसरी सिद्धवड। दो भूमि की निशान। चालू हो जाएगा तो बोलना। चालू। पूरा परिवार के साथ ये म्यूजिक ले चल। मुख्य लाभार्थी परिवार भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये सुंदर 6 गांव की यात्रा के अंदर मुख्य लाभार्थी के तौर पे लाभ लिया है। एक बार जोरदार तालियों के ताल से उनकी अनुमोदना हम करें। हमारी बात यह चल रही थी कि गिरिराज पूरे विश्व में और अन्य कोई तीर्थ में तीर्थाधिराज नहीं कहा गया है, यही तीर्थ को तीर्थाधिराज कहा गया है क्योंकि यहाँ कांकरे कांकरे पे अनंत आत्माओं का मोक्ष हुआ है। अन्यत्र कोई भी जगह पे अनंत आत्मा का मोक्ष हुआ, लेकिन उससे भी अनंत गुना आत्मा सिद्धाचल गिरिराज से मोक्ष गए हैं। आप कहीं पे जाओ, कोई कार्यक्रम 5वें 10वें माले पे हो, समझ लीजिए कोई कार्यक्रम 5वें 10वें माले पे हो, आपके पास 2 ऑप्शन हो, एक सीढ़ी चढ़ के जाना और दूसरा एलिवेटर का उपयोग करना। आप क्या करोगे? एलिवेटर। क्यों? फास्ट पहुंचते हैं,
बस अन्यत्र कोई भी जगह से केवल ज्ञान हो सकता है, मोक्ष की साधना हो सकती है, लेकिन सिद्धाचल गिरिराज एक ऐसा एलिवेटर है कि जहां पे अनंत आत्मा ऐसे आए, एलिवेटर का उपयोग किया, खुद का पुरुषार्थ काफी कम हो गया, खाली क्षेत्र के महिमा के कारण उनका मोक्ष हो गया। वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन देने वाला ये सिद्धाचल गिरिराज है। और ये सिद्धाचल गिरिराज, इसके ऊपर सिद्धाचल गिरिराज जाते हैं, सबसे ज्यादा आकर्षित करे ऐसा स्थान कौन सा? सबसे ज्यादा आकर्षित करे, वहां सबसे ज्यादा जाने का मन हो, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने का मन हो, ऐसा कौन सा स्थान? दादा का दरबार, आदिनाथ दादा। सिद्धाचल गिरिराज के मूलनायक भगवान आदिनाथ भगवान ही क्यों? क्यों माहेश्वरी भगवान नहीं? क्यों पाश्चात भगवान नहीं? क्यों मुनीश्वर स्वामी भगवान नहीं? क्यों नेमिनाथ भगवान नहीं? आदिनाथ भगवान ही क्यों? पूर्व नवाणु बार ऋषभदेव परमात्मा सिद्धाचल गिरिराज। एक पूर्व मतलब 84 लाख इंटू 84 लाख, 84 लाख गुणिया 84 लाख, 70,560 अबज बार, यानी एक पूर्व। अब पूर्व 99 गिन लो, 69,85,440 अबज बार आदिनाथ भगवान सिद्धाचल गिरिराज आए पुण्यात्मा। हम यहाँ पे है भाव, इंडिया में है तो रुपीस में करेंसी चलती है। अमेरिका का काल ऐसा था, वर्ष में करेंसी नहीं चलती थी, वहां पे पूर्व में करेंसी चलती थी। ये पूर्व का गणित है। इतना लंबा आयुष्य था, 99 पूर्व मतलब 69,85,440 अबज बार आदिनाथ भगवान सिद्धाचल गिरिराज आए। और समझने जैसी बात यह है कि आदिनाथ भगवान सिद्धाचल गिरिराज आए, इसलिए सिद्धाचल गिरिराज महान नहीं है। इसी गुरु परमात्मा सिद्धाचल गिरिराज एक बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, अरबों खरबों बार आए। इसलिए सिद्धाचल गिरिराज शाश्वत तीर्थाधिराज नहीं है, पर शत्रुंजय गिरिराज तीर्थाधिराज था। इसलिए प्रभु बार बार ये तीर्थ पर आए, क्योंकि प्रभु को मालूम था, प्रभु तीसरे आरे में हुए, प्रभु को मालूम था कि जब चौथा आरा आएगा ना, जब मैं नहीं होऊंगा, फिर भी मेरे 99 पूर्व बार आने के कारण अनंत असंख्य आत्मा ऐसे होंगे चौथे आरे में कि जो मेरे पीछे आएंगे, सिद्धाचल गिरिराज पर आकर उनका कल्याण हो जाएगा, उनका मोक्ष हो जाएगा। जब पांचवा आरा होगा, जब प्रभु महावीर देव भी नहीं होंगे विद्यमान, उस वक्त जब मोक्ष बंद हो चुका होगा, तब भी मेरी पूर्व 99 के पीछे यहाँ लोग 99 बार यात्रा करेंगे, और यहाँ से मोक्ष नहीं होने के बावजूद भी शायद ये भव में नहीं तो पर भव में उनका कल्याण शत्रुंजय गिरिराज के कारण अवश्य होगा। और इसलिए आदिनाथ भगवान बार बार सिद्धाचल गिरिराज आए। ऐसा सिद्धाचल गिरिराज, ऐसा तीर्थाधिराज आज हमें मिला है, जिसकी यात्रा करने का परम सौभाग्य आज हमें मिला है। 8.5 करोड़ मुनि शांब और प्रद्युम्न के साथ यहाँ से मोक्ष गए, और 8.5 करोड़ मुनि भगवंतों के मोक्ष गमन की यात्रा के पीछे ये पूरा मेला शुरू हुआ। फागण सुद 13 की 6 गांव की यात्रा भाड़वा डूंगर को उतर के पूरी होती है। ऐसी ये यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा तीर्थ तो महान है, ये दिन भी महान है, ये काल भी महान है। वो शाम और प्रद्युम्न के उस 8.5 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष गमन को आज याद करना है। एक बार सुंदर गिरिराज की भक्तिमय एक पद मैं भरत भाई को बोलूंगा यहाँ से लिया जाए, और फिर हम अपने जो आगे के कार्यक्रम है उसमें आगे बढ़ेंगे। भरत भाई।
इस प्रतिक्रमण करते हैं। सुबह का प्रतिक्रमण हर रोज करने वाले कितने? 1, 2। अच्छा, पर्युषण पर्व के दौरान राय प्रतिक्रमण सुबह का प्रतिक्रमण करने वाले कितने? काफी सारे। मतलब कि प्रतिक्रमण सुबह का कैसे होता है वो तो सबको मालूम है। सुबह जो मुझे विनतड़ी प्रेम धरी ने भाव धरी ने एनी पेरे तुम्हें संभळावजो। लेकिन उसमें एक चैत्य वंदन है कविरार कविवर राम विजय जी महाराज का स्तवन है, जिसके शब्द है धन्य ते श्रावक श्राविका जे निरखे प्रभु मुख चंद। धन्य ते श्रावक श्राविका जे निरखे प्रभु मुख चंद। पण ए मनोरथ अमतना क्यारे फलशे भाग्य अमंद। वो तो भरत ने छेड़े। ध्रुव पंक्ति है वो तो भरत ने छेड़े। ये जब ध्रुव पंक्ति बोलते हैं ना भरत ने छेड़े, तब लगता है हम भरत के छेड़े नहीं, हम भाग्य के छेड़े कि प्रभु श्रीमंदर स्वामी भगवान के पास हमें जन्म नहीं मिला, प्रभु का मुख देखने रह गए। ये भरत क्षेत्र मतलब महाविदेह क्षेत्र के सामने क्या? कुछ नहीं। चौथे आरे की जाग जमाल और महाविदेह क्षेत्र की जाहो जलाली के सामने अपना अभी का भरत क्षेत्र स्लम एरिया है। कुछ नहीं है। ना यहां से यहां प्रभु मिले, न या प्रभु का समवस्त्रण मिले, न प्रभु की देशना मिले, न निरतिचार संयम जीवन मिले, न दुष्कर निरतिचार संयम जीवन की प्राप्ति मिले, न कोई ज्ञानी मिले, न यहां से डायरेक्ट मोक्ष मिले। कुछ नहीं है यहां पे। आंख में से अश्रु की धारा जाती है कि प्रभु यहां जन्म क्यों दिया। लेकिन जैसे ही श्रीमंदर स्वामी भगवान का चैत्य वंदन खत्म होता है, दूसरा चैत्य वंदन किनका आता है? श्री शत्रुंजय महातीर्थ आराधनार्थे चैत्य वंदन करू। श्री शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र दीठे दुर्गति बारे भाव धरीने जे चढ़े तेने भव पार उतरे। अनंत सिद्ध नो अठाम सकल तीर्थ नो राय, सकल तीर्थ नो राय पूर्व नवाणु ऋषभ देव ज्यां ठविया प्रभु पाया। और श्रीमंदर स्वामी भगवान का चैत्य वंदन के दौरान जो आंख में से अश्रु की धारा निकलती थी, दुख की धारा थी, वो अश्रु ऐसे के ऐसे रहते हैं, खाली दुख विलायमान हो जाता है और स्थान ले लेता है हर्ष, क्योंकि हमें शत्रुंजय गिरिराज मिला है।
और जैसे आगे बढ़ता जाता है चैत्य वंदन स्तवन आता है, विमला चलनितु वंदिए, और उसमें शब्द आते हैं कोई अनेरू जग नहीं ए तीर्थनी तोले रे एम श्री मुख हरि आगले। कौन बोले? श्री सिमंदर बोले रे। श्री सिमंदर स्वामी भगवान बार परशुदा के बीच में श्री हरि इंद्र को संबोध के कहते हैं, इंद्र सुन, 14 क्षेत्र में 15 कर्मभूमि, 15 कर्मभूमि में 14 में जो नहीं, 10 में जो नहीं, 5 में जो नहीं, अरे 2 में नहीं, 15 कर्मभूमि में खाली एक कर्मभूमि है, जम्बूद्वीप का भरत। भरत में भी दक्षिणार्ध भाग, उसमें भी मध्यखंड, और उसमें भी सोरठ देश, जहां ये शत्रुंजय गिरिराज विद्यमान है ना, वो शत्रुंजय गिरिराज जिनको मिला है, सिमंदर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? शत्रुंजय महातीर्थ, शत्रुंजय गिरिराज, शत्रुंजय तीर्थाधिराज जिनको मिला है वो धन्याति धन्य है। किनको मिला है शत्रुंजय? किनको मिला है? अपने को मिला है। सिमंदर स्वामी भगवान के मुख में अपना नाम आना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। परमात्मा महावीर देव के, परमात्मा वीर के मुख में सुलसा श्राविका का नाम आता था। क्या था उनके पास? क्या था उनके पास? है अपने पास सुलसा श्राविका जैसी अविहर श्रद्धा अपने पास है। परमात्मा महावीर देव के मुख में पुण्या श्रावक का नाम आता था। क्यों आता था? रानी छाप रुपए जैसी सामायिक, अपने जैसी नहीं, रानी छाप रुपए जैसी सामायिक 6 अपने पास है। और आज वीर प्रभु के मुख में दन्ना अणगार का नाम आता था। क्यों आता था? वर्तमान परिणाम अपने पास है क्या? लेकिन फिर भी खाली शत्रुंजय गिरिराज हमें मिला है। साक्षात सिमंदर स्वामी भगवान अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं, एक गरीब की संपत्ति का लखलूट बखान करते हैं सिमंदर स्वामी भगवान, क्योंकि शत्रुंजय हमें मिला है। 1975 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी, नाम था दीवार। 2 एक्टर थे, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। अमिताभ बच्चन कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर क्या कहता है? मेरे पास मां है। अगर साक्षात महावीर क्षेत्र से कोई व्यक्ति यहाँ पे 500 धनुष्य की काया लेकर आ जाए और वो बोले कि बंधु तेरे को मालूम है हमारे पास महावीर क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान है, सिमंदर स्वामी भगवान का समवस्त्र है, वहां पे 100 करोड़ साधु है, 100 करोड़ साध्वी है, 10 लाख केवल ज्ञानी है, तेरे पास क्या है? अपन कहेंगे भाई मेरे पास सिद्धाचल गिरिराज, मेरे पास शत्रुंजय गिरिराज है, जो तेरे पास नहीं है। स्वाध्याय करता था और एक घटना सुनने में आई, आंख में से अश्रु सर पड़े, 3.5 करोड़ रोमराजी खिल उठी कि क्या सिद्धाचल गिरिराज अपने को मिला। महावीर क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान देशना दे रहे हैं, उनकी देशना का विशेष है शत्रुंजय गिरिराज। भूमि कौन सी? महावीर क्षेत्र। देने वाले सिमंदर स्वामी भगवान साक्षात, और विषय है शत्रुंजय गिरिराज। भगवान के मुख से शत्रुंजय गिरिराज का वर्णन सुनते सुनते 12 प्रश्नदा में से कोई श्रावक, कोई श्राविका, कोई साधु साध्वी में से कोई उठ के परमात्मा के पास गए और परमात्मा को कहा कि प्रभु हम तो महावीर के मानव हैं, हमारा भरत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रहे हुए सिद्धाचल गिरिराज में जाना असंभव है, हम वहां पे जा नहीं सकते, हम उसको स्पर्शना नहीं कर सकते, लेकिन हम आप जो सिद्धाचल गिरिराज के बारे में जो बता रहे हो ना, वो दिल को इतना भा गया है, दिल को इतना छू गया है कि प्रभु मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं विनती करता हूं प्रभु आप सिद्धाचल गिरिराज का वर्णन हो सके तो विस्तार से कीजिए, हमें सुनना है। और परमात्मा ने विनती का स्वीकार किया, सिद्धाचल गिरिराज का वर्णन विस्तार से करना शुरू किया। और विस्तार से वर्णन सुनते सुनते सुनते, पुण्यशाली सुनिएगा, सिद्धाचल गिरिराज का वर्णन सुनते सुनते 12 प्रश्नदा में बैठे हुए कई साधु, कई साध्वी, कई श्रावक और कई श्राविका को वही के वही घाती कर्मों का क्षय
प्राप्ति हो गई। खाली सिद्धाचल गिरिराज का वर्णन सुनते सुनते और नीचे लिखा था कि सिमंदर स्वामी भगवान की परिषदा में जो घटना घटित हुई वैसी घटना एक नहीं अनंत काल में अनंत बार हो चुकी है। खाली सिद्धाचल गिरिराज का वर्णन सुनते सुनते मोक्ष गमन होने वाले भी, केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाले भी अनंत आत्मा है। ऐसा सिद्धाचल गिरिराज हमें मिला है और ये सिद्धाचल गिरिराज की 14 साल से कंटिन्यूसली श्री आदिनाथ भक्ति परिवार 6 गांव की यात्रा का आयोजन करता रहा है। एक बार तालियों के ताल से श्री आदिनाथ भक्ति परिवार को बधाए। आज सैकड़ों की संख्या में शुरू किया था तब कदाच शायद थोड़ी कम संख्या थी, लेकिन बढ़ती 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 आज 800, 900, 1000 आप सबको लेकर यहां आना, पूरी व्यवस्था करना, मुंबई से आना, खाली पालिताना नहीं, शंखेश्वर लेना, मां मणिलक्ष्मी तीर्थ आदि आदि अलग अलग तीर्थों की यात्रा भी करवाना और तीर्थों की यात्रा के बाद परम पवित्र सिद्धाचल गिरिराज की 6 गांव की यात्रा का पूरा आयोजन। और ये आयोजन के दौरान आप सब में कितने कितने परिणाम उनको उन्होंने उचकाया होगा और उनके माध्यम से कितने कितने कर्म की निर्जरा हम सबने की हो और वो सभी कर्म की निर्जरा का पुण्यवंत आज श्री आदिनाथ भक्ति परिवार के सदस्यों को होता है। एक बार तालियों के ताल से कोई भी कार्य तन के बिना नहीं होता। कहीं किसी का तन लगा हो, किसी की शक्ति लगी हो, किसी का सामर्थ्य लगा हो, किसी का समय लगा हो और किसी का धन लगा हो, किसी की संपत्ति लगी हो। तन मन धन से ही कोई भी कार्य को अंजाम पहुंचाया जाता है। श्री आदिनाथ भक्ति परिवार द्वारा उनके कार्यकर्ताओं ने अपना समय दिया, अपनी शक्ति दी, अपना सामर्थ्य दिया, तो साथ में ऐसे कितने पुण्यशाली हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का सदव्यय करके ये श्री आदिनाथ भक्ति परिवार के माध्यम से कितने कितने पुण्यात्माओं को श्री गिरिराज की भक्ति में जोड़ने का काम, श्रमण श्रमणी भगवंतों के सुपात्र दान और वयावच में जोड़ने का काम किया। और यह काम एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है। जिन्होंने अपना धन का सदव्यय किया है, ऐसे पुण्यात्मा दानवीरों को भी एक बार तालियों के ताल से बधाई। शास्त्र में लिखा है कि शत्रुंजय गिरिराज पे आप कोई भी कार्य करो, उसका 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, लाख गुना, ऐसे अनंत गुना फल भी आपको मिलता है। यहाँ पे 10 लाख श्रावक, 10 लाख साधर्मिकों की अगर आप भक्ति करते हो अन्यत्र कोई जगह पे, उतना फल यहाँ पे खाली एक श्रमण या एक श्रमणी भगवंतों का सुपात्र दान करने में मिलता है। इतना बड़ा लाभ, वयावच का लाभ, ये सब लाभ आदिनाथ भक्ति परिवार के, श्री आदिनाथ भक्ति परिवार के माध्यम से जिन्होंने संपत्ति का सदव्यय किया है, उन सभी पुण्यात्माओं को के फाले ये लाभ जाता है। समय की मर्यादा है, कम समय के अंदर हमें गिरिराज की भक्ति के विषय में भी लेना है। साथ में उन दाताओं का बहुमान भी आज हमें करना है। मैं विनती करता हूं, जितने भी दाता आज श्री आदिनाथ भक्ति परिवार के साथ जुड़े हैं, वे सभी दाताओं को विनती करता हूं, यहाँ से नाम मैं बोलता जाऊंगा, वो आदिनाथ भक्ति परिवार के दाता श्री आगे बढ़े और श्री आदिनाथ भक्ति परिवार के सदस्य जो भी हाजिर है यहाँ उनका बहुमान करेंगे। उसके बाद मातृ पितृ वंदना का भी एक अद्भुत कार्यक्रम अभी हमें देखना है, हमें निहालना है।
वो भी कार्यक्रम बाकी है, थोड़ी स्थिरता बनाए रखिएगा पुण्यशाली